مجھے سب یاد ہے۔ جلال کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس واقعے کی ایک تکون بنی تھی، ڈینی، سوبراج اور نک۔ اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑا۔ نک کا ایک کمانڈو مارا گیا، دوسرا بے ہوش ہوا۔ تازہ ترین واقعے کی تکون بھی بالکل یہی ہے۔ اس کے نتیجے میں نک کے ساتھ شیر دل بھی مارا گیا اور کفیل پکڑا گیا۔ کفیل ہوش میں آتے ہی شیر دل کی نشاندہی کرے گا۔ وہ ڈینی کے مخصوص زہر سے مارا گیا ہے۔ جب تک سوبراج شیخی میں آ کر نک کے قتل کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے لیتا، بادی نظر میں یہ سمجھا جائے گا کہ ڈینی نے پہلے شیر دل کے آدمی کے ذریعے نک کو مروایا، پھر شیر دل کو بھی مار دیا۔ میرے دوست، میں نے جلال سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے یہ اندیشے بجا ہے، لیکن تم نک کی موت سے کچھ زیادہ پریشان ہو گئے ہو۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو سوبراج کسی بھی وقت کسی بڑے اخبار کے دفتر سے رابطہ کر کے نک کا قاتل ہونے کا دعویٰ کر ڈالے گا۔ پھر کفیل زخمی اور بے ہوش ہے، کل دن سے پہلے اس کا بیان دینے کی نوبت نہیں آ سکے گی۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ شیر دل ایک بدمعاش تھا، اس کی موت کی خبر ضرور پھیلے گی، لیکن اس کے قتل کے صحیح اسباب کا تعین کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کی نوبت دیر سے آئے گی۔ وہ نتائج آنے سے پہلے صبح کے اخبارات میں سوبراج کا اعلان چھپ چکا ہوگا۔ فرض کرو کہ یہ سب کچھ یوں ہی ہوتا ہے، پھر بھی اس بات کا کیا جواز ہوگا کہ تم سوبراج کے ساتھ مسلسل نک کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ بات نک سے بڑھ کر امریکی مفادات تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ویرا نے جلال کی تائید کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈینی اور سوبراج نے ایکا کر لیا ہے۔ ایسا سوچنے والوں کی عقلوں پر ماتم کرنا پڑے گا۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا، پچھلی بار اگر ایک امریکی کمانڈو مارا گیا تھا تو آج سوبراج کا ایک قابل اعتماد آدمی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوا ہے۔ یہ دونوں واقعات کا بنیادی فرق ہے۔ اگر تم شیر دل پر انگوٹھیوں والا زہر استعمال نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس بار اول خان نے اپنی رائے دی تھی، قتل کے اس مخصوص طریقے کی وجہ تمہارا نام ضرور لیا جائے گا۔ اگر میں کچھ اور طے کر بھی لیتا تو اس پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ شیر دل کا اڈا گنجان آبادی میں ہے، جہاں گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک گھر میں زور سے بولنے کی آواز آسانی سے دوسرے میں سنی جا سکتی ہے۔ شیر دل کو ٹھکانے لگانے کے صرف دو راستے تھے جن پر عمل کر کے میں رازداری اور خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ سکتا تھا، زہر یا بیم گن، اور ان دونوں پر میرے نام کی چھاپ لگ چکی ہے۔ ظاہر ہے، میری وضاحت پر اول خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کسی کو بھی شبہ ہو جاتا کہ شیر دل کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے تو وہاں سے تمہارا صحیح سلامت نکل آنا دشوار ہو جاتا۔ یہ تمہاری ناگزیر مجبوری تھی۔ اس وقت تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ بہت نازک ہے، وہ ہنس کر بولا۔ نک کی موت کے اثرات دور تک محسوس ہوں گے اور شاید دیر پا بھی ثابت ہوں۔ تمہارا شیر دل واقعی شیر دل ثابت ہوا، اول خان نے داد دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نک کو اتنی آسانی سے راستے سے ہٹایا جا سکے گا۔ سوبراج جب بھی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ شیر دل نے اس کے اشارے پر نک کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، اس بیچارے نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورے خلوص سے پورا کیا، لیکن تم نے اسے کوئی اچھا صلہ نہیں دیا۔ وہ بیچارہ نہیں تھا، میں نے کارڈدار لہجہ میں کہا، نہ جانے کتنے لوگوں کا قاتل تھا، اور اب بھی 1.5 لاکھ لے کر کسی کو بھی مارنے کے لیے تیار تھا۔ ایسے موذی کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ جو لوگ چند پیسوں کے عوض خود کو بیچ دینے پر تلے رہتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ وہ جب تک جیتے ہیں دوسروں کا خون پی کر جیتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ جہانگیر کے بارے میں سوبراج کی دھمکی کو کوئی بھی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ وینا نے اچانک وہ ذکر نکال دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا اہمیت ہوگی کہ اول خان نے سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو اس کی خصوصی حفاظت کی ہدایت دی ہے۔ اب ہم وہاں ٹینک تو کھڑے نہیں کر سکتے۔ میں نے قدر ترشی سے کہا، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ غزالہ نے تحمل سے کہا، تمہارے ذہن میں کوئی نئی بات آ رہی ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو۔ ہم میں سے کسی نہ کسی کو اس کے گھر پر موجود رہنا چاہیے۔ ویرا نے اپنی رائے تھی۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ ہم میں سے کسی کے وہاں ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور کچھ نہیں تو اس کی دل چوئی ہوتی رہے گی، ویرا بولی۔ وہ سوبراج کی تازہ ترین دھمکی سے بے خبر اور اپنے گھر میں مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ اسے کسی کی طرف سے دلجوئی کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے لیے تمہارا پتا پھڑک رہا ہے تو پھر تم وہاں ہی چلی جاؤ، میں نے خشک لہجہ میں کہا۔ میں خوشی سے وہاں جانے کے لیے راضی ہوں۔ آج کے دور میں ایسے مخلص دوست نایاب ہوتے ہیں، لیکن تم کو اس کی ذرا بھی قدر نہیں ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تم میری پوزیشن کی بات کر رہے تھے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد جلال نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی اور کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات اڑا دی۔ تمہاری پوزیشن مجھے معلوم ہے، تمہارا دل ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تم وہی سوچتے ہو جو ہم سوچتے ہیں۔ میں تمہاری سرکاری پوزیشن کی بات کر رہا تھا۔
इसी वक्त वीरा ने खामोशी से अपनी जगह छोड़ी और किसी से कुछ कहे सुने बगैर अपने कमरे की तरफ चल दी। वीरा हमेशा से मूडी औरत थी। उसके वो अंदाज हम में से किसी के लिए भी नए नहीं थे। किसी ने भी उसके चले जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरा ख्याल था कि हर तरफ शाम का अंधेरा उतर आया था और वीरा के असाब पर शराब की तलब सवार होने लगी थी। वो किसी से कुछ कहे सुने बगैर अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने कमरे की तरफ गई होगी। वो वीरा की ऐसी मोरूसी आदत थी जिसे छुड़ाना किसी के बस का रोग नहीं था। मैंने उसे जब भी अल्कोहल के मुज़र असरात के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की, उसने ये कहकर मेरा मजाक का उड़ाना शुरू कर दिया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। इसके बताए हुए हिसाब के रोज से मैं एन आलमी शबाब में पहुंचने तक इतनी शराब पी चुका था जितनी कोई आदि शराबी अपनी सारी उम्र में नहीं पी सकता। अपनी जिंदगी भर का कोटा पूरा करके अगर मैंने वो कभी मशगला तर्क कर दिया था तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। वो कहती थी कि जब उसका कोटा पूरा हो जाएगा तो वो भी मेरी तरह शराब नोशी से तायब हो जाएगी। आसार कराइन ये बता रहे थे कि वीरा को जिंदगी भर अपना कोटा पूरा होने का एहसास नहीं हो सकेगा। वो अपने आखिरी सांस तक शराब खाना खराब के तिलिस्म में गिरफ्तार रहेगी। ये उक्दा समझ में आ जाने के बाद मैंने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था। मैंने भी जो कुछ कहा अपनी सरकारी पोजीशन के बारे में कहा था। पहले जो कुछ होता रहा उसे अमरीकी किसी न किसी तरह सह गए, लेकिन आज के बदले हुए हालात में इनके चारहाना अमल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जो कुछ हुआ वो एक आम वाकया है। इस किस्म के वाकयात दुनिया भर में रूनमा होते रहते हैं। इन पर बहुत ओहदम होता है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसे वाकयात का 100% इंतजार करने में कामयाब नहीं हो सका। मैंने कहा। बात घूम फिर कर उसी नुक्ते पर आ जाती है जो अव्वल खान ने उठाया था। जलाल ने गहरी सांस लेकर थकी हुई आवाज में कहा, कफील और शेर दिल का ताल्लुक ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रहेगा। वो इस बात का पतंगड़ बनाने की कोशिश करेंगे कि शेर दिल को तुमने मारा है और इस तरह निक के कत्ल के हकाइक पर पर्दा डालने की कोशिश की है। इस वाक़े में कहीं न कहीं तुम्हारा हाथ जरूर मुलविस है। अव्वल खान खामोश रहा। इसके चेहरे पर गंभीर संजीदगी तारी थी। आखिर गजाला ने मुसरबाना अंदाज में कहा, जब सोबराज सारी जिम्मेदारी अपने सर लेगा तो शेर दिल की क्या अहमियत रह जाएगी। ये हम लोग कह रहे हैं, तुम कह रही हो, वो सोबराज का बयान को ज्यादा वक़्त नहीं देंगे, अपने मतलब के हकाइक पर जोर देंगे। जलाल ने गजाला को समझाने की कोशिश की। आज की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि शेर दिल एक जहरीली सुई का शिकार हुआ है। डैनी के कई हरीफ ऐसी सुइयों के शिकार हो चुके हैं। शायद वो ये दलील अपनाएंगे कि शेर दिल का कातिल ही निक का असल कातिल है। उसने अपनी पर्दा पोशी के लिए शेर दिल को मार डाला, वरना कानून के रखवाले कफील के सहारे शेर दिल तक पहुंच जाते और इससे असल कातिल का कोई ना कोई सुराग मिल जाता। शेर दिल की मौत से वो राहें मसदूद हो गईं। सूरत अहवाल वाकई बहुत गुंजलक है। मैंने एतराफ़ किया कि हम इस मामले में वक्त से पहले और शायद जरूरत से ज्यादा दिमाग सोजी कर रहे हैं। अभी वाकया ताज़ा है, हमें आज रात सुख की नींद सो जाना चाहिए। सुबह देखेंगे कि सोबराज ने क्या गुल खिलाए हैं, इसके बाद ही नया नक्शा सामने आ सकेगा। हाँ, जलाल होले से हंस दिया। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक हम झाड़ियों के गिर्द भटक रहे हैं। शिकार का दूर दूर तक पता नहीं है। घूम फिर कर एक जैसे खतरात और खदशात सामने आ रहे हैं। बस खाने की तैयारी करो, मैंने गजाला से मुखातिब होकर कहा। आज हम सब एक साथ डिनर करेंगे। ये मौज़ूआत कल ज़ेर बहस आएंगे। जलाल लाख इनकार करता रहा। वो देर से खाना खाने का आदी था, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। उसकी सहूलत के लिए इसी वक्त मेज़ लगाने की फैसला कुन हदायत जारी कर दी ताकि उसका ज़्यादा वक्त ख़राब न हो। गजाला घर में मौजूद अफराद की तलाश में उठ गई। जब से अव्वल खान ने 2 मुहावसों की सूरत में हमें ऐसे अफराद फराम किए थे जो घरेलू कामों में भी भरपूर महारत रखते थे, गजाला के सर से काम का बोझ हल्का हो गया था। वो दोनों इसकी सरसरी हदायत पर हर काम इस करीने से अंजाम देते थे कि दिल खुश हो जाता था। चंद मिनट बाद ही गजाला बुखलाई हुई वापस आई। उसने बताया कि वीरा अपने कमरे या बाथरूम में थी, न घर के किसी हिस्से में। हम सब के लिए वो खबर एक धमाके से कम नहीं थी। मैं उठकर तेजी से वीरा के कमरे की तरफ गया तो वहां की फिजा में अल्कोहल की तेज बू फैली हुई थी। तपाई पर ब्लैक लेबल की बोतल और एक गिलास में बची हुई अस्काच की चंद बोतलें चुगली खा रही थीं कि कहीं जाने से पहले वीरा ने अस्काच का एक लंबा गिलास लिया था। फिर मुझे मसहरी पर बेतरतीबी से पड़े हुए वो कपड़े भी नजर आ गए जो कुछ देर पहले वीरा के सड्डोल बदन की जीनत बने हुए थे। ड्रेसिंग टेबल भी बिखरी बिखरी सी नजर आ रही थी। साफ जाहिर तक वीरा लिबास बदल कर पूरी तैयारी के साथ घर से निकल गई थी। वीरा की तलाश के सिलसिले में घर में अफरा तफरी फैली तो STF के दोनों आदमी भी अंदर आ गए। मेरे पुरतशवीश इस्तफसार पर अबरार ने बताया कि वीरा कुछ देर पहले पैदल घर से निकली थी। उसने अबरार से कहा था कि कोई उसके बारे में दरियाफ्त करे तो वो बता दे कि वो जहांगीर की तरफ गई थी। अबरार की जुबान से जहांगीर का नाम सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दीन मोहम्मद और अबरार की मौजूदगी में कोई खुलकर बात नहीं कर सकता था।
मैंने इन दोनों को मेज लगाने के लिए किचन की तरफ भेजा और खुद सर झुकाकर ड्राइंग रूम में लौट आया। यह अजीब गैर जिम्मेदार और सनकी लड़की है। जलाल ड्राइंग रूम में आकर नाखुशगवार लहजे में अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। जरा सी बात पर यूं तनक कर घर से निकल गई। इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जहांगीर से ज्यादा वो खुद खतरात में घिरी हुई है। ऐसी हरकत से आखिर वो क्या साबित करना चाह रही है? जलाल के इस्तेमाल का अंदाजा करके मैंने बिला वजह मुस्कुराना शुरू कर दिया, जैसे मैं वीरा की इस तिफलाना हरकत से मायूस हुआ हूँ। हकीकत ये थी कि इस वक्त मैं गुस्से से दिल ही दिल में वीरा पर बल खा रहा था। वो कुछ भी साबित नहीं करना चाहती। गजाला ने जल्दी से कहा, बस कभी कभी उसकी ज़हनी रूह जरा बहक जाती है। उसे ये एहसास नहीं होता कि उसकी ज़हनी रूह बहकने के नतीजे में दूसरों को किस कदर ज़हनी इंतजार का सामना करना पड़ता है। जलाल बराह रास्त गजाला से मुखातिब हो गया। गजाला ऐसे तुरश सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। वो बदनीयत या बेवफा नहीं है। गजाला के सटपटा जाने पर अव्वल खान ने वीरा की तरफदारी का फरीजा निभाने की कोशिश की। बस हर वक्त डैनी से उलझी रहती है। इस वक्त भी वो डैनी को यह जताने के लिए निकली होगी कि जहांगीर की हिफाजत से बेपरवाही दोस्ताना मरासिम के मुनाफी है। वो गलती की मुर्तकिब जरूर हुई है, लेकिन उसकी नीयत नेक है। वो इस आड़े वक्त में जहांगीर के करीब रहकर उसकी मदद करना चाहती है। इसकी यह हरकत डिसिप्लिन के मुनाफी है। डैनी इनका पार्टी लीडर है। उसकी इजाजत के बगैर उसने घर से कदम कैसे निकाला? ऐसी सरप्री लड़की कैसी ही दलेर और नेक नीयत हो, मैं इसे एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलाल का गुस्सा बरकरार था। अभी तुमने कुछ नहीं देखा, अव्वल खान ने कदरे मुतासफाना अंदाज में कहा। पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क और हम वतनों को छोड़कर उसने सबको अपना बेकोड़ी का गुलाम बना लिया है। ये लोग इसी तरह इसकी नाज बर्दारियां करते हैं। यही नहीं का दिल गुर्दा है कि इसे बर्दाश्त करते हैं। मेरी बात कहीं लिख लो कि अपनी इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से वो किसी भी वक्त बेमौत मारी जाएगी। हद से बड़ी हुई ये खुद एतमादी आदमी को ले डूबती है। उसकी हरकतें उसके साथ हैं, उसकी खबरगिरी हमारा फर्ज है। जलाल से ये कहकर गजाला मुझसे मुखातिब होगी, आप जहांगीर को फोन कर दें कि वीरा को फौरन घर लौटा दे। हरगिज नहीं, जलाल ने सख्ती से गजाला की मुखालफत की। वो चली गई है तो उसे जाने दो। अब इंतजार करो कि वो किस खबर के साथ वापस आती है, और आती भी है या नहीं आती। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, उसे सबक मिलना चाहिए। मैं जलाल की दीगर बातों से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन उसकी मुखालफत मेरे लिए एक सहारा साबित हुई। मैं जानता था कि जहांगीर के दिल में वीरा के लिए बहुत नर्म गोशा मौजूद था। वो हमेशा वीरा के साथ मिलकर बैठने के लिए तरसता था। यह नामुमकिन था कि वीरा की फौरी वापसी के बारे में वो मेरी कोई हदायत कबूल कर लेता। इसके लिए वीरा की सोहबत एक नेमत गैर मुरतकबा से कम नहीं होती। वो अपने घर आने वाली इस खुश रूह मेहमान को किसी कीमत पर लुटाने पर आमादा नहीं हो सकता था। मुझे मालूम है कि तुम भी वीरा के बदख्वाह नहीं हो, मैंने जलाल से कहा। जो कुछ कह रहे हो वो गुस्से का नतीजा है। ये तुम्हारे दिल की आवाज़ नहीं है, मगर मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त वीरा के लिए हमें किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं। वो चली गई है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि वो खैरियत के साथ वापस भी लौट आए। हैरत है कि तुम्हें उसकी हमायत में मेरे दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है। जलाल अपने दोनों हाथ फिजा में लहरा कर बोला, तुम तीनों इसकी शख्सियत के शहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो। मेरे लिए गनीमत है कि तुम मेरी एक बात मान रहे हो। अब इस किस्से को ख़त्म करो, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वीरा की खामोश रवानगी के इंकशाफ से घर की खुशगवार फिजा यकायक बोझल हो गई। अव्वल खान के आदमियों को भी इस सूरत हाल का इदराक था। उन्होंने तेजी के साथ मेज लगा दी और हम खामोशी के साथ मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर जम गए। खाने के दौरान में इधर उधर की बेरब्त बातें होती रहीं। इस वक्त सबके ज़हनों पर वीरा की सलामती का मसला सवार था, लेकिन जलाल ने उसे जिक्र ममनूक करार दे दिया था। किसी गैर ज़रूरी बदमज़गी से बचने के लिए हर एक वीरा का तज़किरा करने से गुरेज कर रहा था। जब जहन कहीं और हो, जुबान जहन का साथ न दे रही हो, तो किसी बात में रब्त और तवातुर बरकरार नहीं रहता। इस वक्त खाने की मेज पर यही कुछ हो रहा था। खाना खत्म होते ही चाय आ गई और वो दौर भी खिलाफत वक्त का जल्द खत्म हो गया। जलाल रस्मन कुछ देर बैठा रहा। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वीरा और जहांगीर के सिवा क्या बात की जाए। माहौल पर अजीब सा जमूद तारी हो गया। आखिरकार जलाल रवानगी के इरादे से उठ गया। मैं उसे छोड़ने के लिए उसकी गाड़ी तक आया तो मुझसे हाथ मिलाते हुए वो चंद सानियों तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, वो अहमद लड़की वापस आ जाए तो मुझे मोबाइल पर बता देना। मैंने उसे ये याद दिलाने की कोशिश नहीं की कि खाने से बेहतर उसने वीरा के बारे में मजीद कोई बात न करने का अज़्म जाहिर किया था। मुझे खुशी हुई कि अपने मखसूस मिजाज के बावजूद वो वीरा से लाताल्लुक नहीं था। उसके कहे हुए एक एक लफ्ज़ से गहरी फिक्रमंदी झलक रही थी। मैं जलाल को रुखसत करके अंदर आया तो गजाला और सुल्तान शाह में किसी मसले पर बहस छिड़ी हुई थी। मेरे कदमों की आहट सुनते ही दोनों खामोश हो गए। क्या हो रहा था? ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने सुल्तान शाह को घूरते हुए पूछा। कुछ भी नहीं,
उसने सिटपटा कर जवाब दिया। मैं बताता हूँ, अव्वल खान ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ कहा। एक हमाकत वीरा ने की है और अब सुल्तान शाह दूसरी हमाकत करने का इरादा कर रहा है। ये वीरा के पीछे जाना चाहता है, गजाला इसे रोक रही है। मुझे ही नहीं, तुमको भी चलना चाहिए, सुल्तान शाह ने यकायक मुझसे नजरें मिलाकर कहा। हमें जलाल के डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं, हम इसके मातहत नहीं हैं। उसने एक बात कही और सबकी जुबानों को लगाम लग गई। उसके सामने क्यों नहीं बोले? गजाला इस पर गुर्राई। क्या तुमको सांप सूंघ गया था? वो चला गया तो आप शेर हो रहे हो? वो बाहर का आदमी है, उसे वीरा से कोई हमदर्दी नहीं है। सुल्तान शाह भरा बैठा था। मैं उसे उलझ कर कोई बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता था। वो हमसे ज्यादा वीरा का हमदर्द है। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर मुलायमत से कहा, जाते जाते कहकर गया है कि वीरा के आते ही उसे इत्तला दी जाए। वीरा ने हरकत ही ऐसी की है कि मुझे भी उस पर गुस्सा आ रहा है। वो तो वीरा के बारे में एक लफ्ज सुनने का रवादार नहीं था, अब क्यों उसके दिल में दर्द उठा है? सुल्तान शाह ने तलखी से कहा। ईमानदारी से बताओ कि क्या वीरा ने सही हरकत की है? मैंने पूछा। मैं इसका दिफा नहीं कर रहा, वो पागल है, उसने बड़ी गलती की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगतने के लिए बेयारों मददगार छोड़ दिया जाए। मुझे उसकी तरफ से तशवीश है। सुल्तान शाह का जवाब सुनकर मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो सामने होती है तो तुम हर लम्हे अपने पंजे झाड़ कर उसके पीछे पड़े रहते हो। ये खुशी की बात है कि तुम उसके लिए फिक्रमंद हो। हमें हेजानी अंदाज में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे रहो। वो थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगी और जरूर फोन करेगी। मेरे जवाब पर सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बना कर रह गया, लेकिन उसकी जुबान बंद रही। इस वक्त के शहर के हालात नॉर्मल होते तो शायद मैं भी वीरा के पीछे तोड़ लगा देता, मगर हालात हमारे दुश्मनों के खिलाफ जा रहे थे। वो आपस में लड़ पड़े थे। निक के दीदा दलेराना कत्ल के बाद इस कैंप के लोग बदतरीन खौफो हिरास में मुब्तला थे। इनसे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो अपनी सलामती को पसे पुश्त डालकर शहर में हमें अंधाधुंध तलाश करते फिर रहे होंगे। यही बात सोबराज पर सादिक आती थी। उसने शेर दिल की हलाकत की खबर पर मुश्तिल होकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो दो तरफा खतरात में घिरा हुआ था। उसे पूरी तरह एहसास दिलाया जा चुका था कि वीरा के बारे में राजदारी का रवैया इख्तियार करके वो FBI से संगीन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ था, जिसके नतीजे में वो लोग उसके खून के प्यासे हो गए थे और शिकारी कुत्तों की तरह शहर में उसकी बूट ढूंढते फिर रहे थे। वो मजरू और शिकस्त खोरदा हरीफ था। उससे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो जहांगीर के बारे में अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए वाज़ेह तरीन संगीन खतरात को पसे पुश्त डाल देगा। इसका रिकॉर्ड गवाह था कि वो एक अच्छा खासा मंसूबा साज होने के बावजूद पसे पर्दा रहकर दूसरों पर हुक्म चलाने का आदी था। उसकी तरफ से ज्यादा यह खतरा था कि वो कराए कि एक दो बदमाशों को जहांगीर के पीछे लगा दे। ऐसे बदमाश खातिर मुआवजे के लालच में अपनी सारी तवज्जो सिर्फ उसी काम पर मरकूज रखते हैं जो इन्हें सौंपा जाता है। वो इससे आगे पीछे कुछ नहीं करते। निचले दर्जे के इन बदमाशों से ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो वीरा के किरदार की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ हों और पहली नज़र में उसे पहचान लें। मुझे पूरा इत्मीनान था कि अगर सोबराज के किराए के गुंडे बहुत ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करके जहांगीर की रहायशी इमारत के कुर्बो जवार में पहुंच भी चुके थे तो वो वीरा के लिए बराह रास्त किसी खतरे का सबब नहीं बनेंगे। वीरा उनके दरमियान से होती हुई आसानी और हिफाजत से जहांगीर के घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। ये बात वीरा के जहन में जड़ पकड़ गई थी कि अब सोबराज अपनी जिल्लतों का बदला चुकाने के लिए पूरी कुव्वत से जहांगीर के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगा। इस अंदेशे के दबाव में उसने तमाम मारूसी हालात को नजरअंदाज कर दिया था। जहांगीर के बचाव के सिलसिले में उसे खास तौर से मेरा रवैया बहुत सर्द बल्कि बेरहमाना महसूस हुआ था। उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं की और तशवीश के बदतरीन ज़हनी दबाव में उसने अज़ खुद कोई कदम उठाने का फैसला कर लिया।